We are still into the chapter of structural organization in animals, and the initial part talks about the different types of tissues found in human body, and the later part of the chapter it talks about three animals, out of which the first animal that we are supposed to study, that will be cockroach. Now, with respect to cockroach, there are certain terms that we should know. Like one term that I can think of is that cockroaches are omnipresent. This is one term that has been used to describe cockroaches. What does it mean? Omnipresent means literally they are found almost everywhere. You know that already. Okay, I think even in certain areas near the polar regions, North Pole and South Pole, I'm not saying exactly at the polar region, but near the polar regions also, cockroaches are present. And of course, in the tropic and temperate regions, they are present in huge number, huge population. Another word about cockroach that we know, generally, like if we are talking about their habit and habitat, about their location, like we have cockroaches in our houses. Generally, as we know that they prefer what is called as, they prefer dark places that have dampness, or what you can also say that has moisture to it. Okay, and generally they prefer dark places. Why do they prefer dark places? One important reason, like their affinity towards darkness, is also highlighted by the fact that cockroaches are nocturnal in their behavior. Have you heard this word anywhere? Nocturnal, I think if you watch Discovery and those kind of channels, National Geographic and those kind of channels, uh, in English language, of course, many times they use this word nocturnal. Nocturnal means any organism which is more active at the night time, that is called as, or that habit is called as nocturnal. जैसा हम उल्लू के बारे में सोच सकते हैं, owls. Okay, there are so many different organisms that are more active at night time than the daytime. Bats are there, bats are nocturnal, owls are nocturnal. Similarly, cockroaches are also nocturnal. और आपको समझ में आना चाहिए थे, आप देखिए दिन भर में हमारे घर में कहीं भी कॉकरोचेस होंगे, लेकिन दिन भर में हमें जनरली वो यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देते. लेकिन आप रात को खाना वगैरह खाकर सब घर निपटा कर, मम्मी को थोड़ा हेल्प भी करना चाहिए, हमने दोनों मॉम और डैड को हमने थोड़ा थोड़ा हेल्प भी करना चाहिए. बाय द टाइम यू आर इन बेड, ऑल द लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ. आप कभी तो भी रात को उठिए 12 12:30 बजे, अगर पानी पीने वगैरह अगर उठ गए, suddenly if you enter the kitchen and you switch on the light, you will find the cockroaches running around. At least one small, two smaller cockroaches, or depending on how clean you are keeping your house. तो ये कैसा है, इनकी आदत ही है कि डार्कर टाइम पे, नाइट टाइम पे ये अपना एक्टिविटी, जस्ट टू सेव देयर लाइफ, इट्स सेफर फॉर देम टू गेट आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो दे आर नॉक्टर्नल इन नेचर. तीसरा एक चीज उन्होंने दिया हुआ है, that they are showing cursorial adaptation. Cursorial adaptation is basically the adaptation that is meant for very fast running. I hope you understand this. Please keep this word in mind. Okay, ये important word है, ये दोनों, all the three actually. रनिंग के लिए कॉकरोच का बॉडी कैसे बना हुआ है देखिए. एक तो उसका शेप देखिए, इट इज फ्लैट एंड लिटरली स्पिंडल शेप, टेपरिंग टुवर्ड्स बोथ द एंड्स. फ्लैट है और बॉडी फ्लैट है, हल्का है. एट द सेम टाइम लेग्स बहुत बड़े हैं. तो लेग्स बड़े होने की वजह से और बॉडी फ्लैट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी लीप्स लेकर ये भाग सकता है. बॉडी फ्लैट होने का और एक फायदा ऐसा है, आपने कभी ना कभी ये
एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत बार हमें कोई कॉकरोच दिखता है, हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। अभी उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं हमको, लेकिन फिर भी उसको समझ में आ जाता कि कोई तो भी मेरे पीछे, कोई तो भी मेरे तरफ आ रहा है। अब ये कैसे, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन मजेदार बात यही है कि एक बार उस कॉकरोच को कहीं भी कुछ आहट सुनाई दी, इट इमीडिएटली स्टार्ट्स रनिंग टू हाइड समवेयर। एंड जनरली आप उसके पीछे भाग रहे, शायद हाथ में चप्पल वगैरह लेकर भाग रहे कि उसको पकड़ेंगे या मारेंगे, बट देन यू रियलाइज कि आगे जाकर कहीं तो भी एक छोटी सी दरार है, वॉल्स के बीच में होगा, कबर्ड के बीच में होगा, आपके अलमीरा के बीच में होगा, कहीं ना कहीं एक छोटी दरार रहती है। कॉकरोच की बॉडी देखी जाए तो वो दरार बहुत छोटी है, लेकिन कॉकरोच का वो फ्लैट बॉडी बराबर उस दरार में से निकलकर वो कॉकरोच गायब हो जाता है। ये उसके बॉडी के एडेप्टेशंस देखिए, दे आर बेसिकली मेंट फॉर ऑल दिस मैन्यूवरिंग, okay, to save its own life. Cursorial adaptation is the adaptation for running around. Then और एक बात बताई जाती है, जैसा कॉकरोचेस आर ओमनीवोरस इन नेचर। ऊपर हमने ओमनी प्रेजेंट लिखा था, अब हम ओमनीवोरस लिख रहे हैं। ओमनीवोरस, दिस इज रिलेटेड टू इट्स फूड। इसका मतलब ऐसा है, इट विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। ओके, इसका ऐसा प्रेफरेंस नहीं है मैं वेजिटेरियन ही हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन ही हूं, मैं वैसे तो नॉन वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं मंगलवार को और शनिवार को नहीं खाता वगैरह वगैरह। ये हमारे जो अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स रहते हैं, इसका वैसा नहीं है। इसे जो चीज मिलेगी ये उसको खा लेता है। मुझे याद है, मेरे एक लेदर का चप्पल था मेरा, तो कुछ कॉकरोचेस ने उस चप्पल पर के लेदर को खा लिया था। नाउ लेदर, यू सी, लेदर तोड़ना बहुत डिफिकल्ट रहता है। अल्टीमेटली वो एनिमल स्किन से बना हुआ रहता है, वो बहुत टफ मटेरियल रहता है, तो उसे तोड़ना आसान नहीं है, उसे चबाना आसान नहीं है, उसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, पर ये करते हैं वैसा। दे कैन ईट एनीथिंग, दे कैन ईट प्लांट मटेरियल। अभी जनरली हमारे घर में कैसे मिलते हैं, देखिए आपको ये आपके किचन के बेसिन के आसपास, किचन सिंक जो रहता है उसके आसपास आपको ये दिखेंगे। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद एक तो किचन काउंटर पे जो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल्स वगैरह गिर जाते हैं, ये उसकी तलाश में आ जाते हैं। अभी वो फूड पार्टिकल वेजिटेरियन फूड पार्टिकल है या नॉन वेजिटेरियन फूड पार्टिकल है, दे आर नॉट बॉदर्ड, ऑल दे आर हैप्पी कि दे आर गेटिंग फूड। They can eat almost anything and everything. On the contrary, अभी ये चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कॉकरोचेस आर नॉट जस्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी क्या? हु कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कॉकरोचेस आर नॉट जस्ट ओमनीवोरस, बट दे आर, इफ टाइम कम्स, दे एग्जिबिट cannibalism. They exhibit cannibalism. I don't know if you know this word. Cannibalism का मतलब क्या है? अगर ऐसा टाइम, देखिए कॉकरोचेस आपको तो ऐसा एक दो इधर उधर दिखेंगे, लेकिन वो जहां पे रहते हैं, देयर दे लिव इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। तो कभी कभी अगर ऐसा टाइम आया, ऐसा वक्त आया कि कॉलोनी में एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट गेटिंग फूड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, ऐसा अगर वक्त आया तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अगर खाने की किल्लत है, अगर खाना अवेलेबल नहीं है, तो दीज कॉकरोचेस दे स्टार्ट ईटिंग ईच अदर। वो किसी वीक इंडिविजुअल को ढूंढेंगे, वो अपना ही भाई है, वो अपनी ही बहन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे विल फाइंड वन ऑफ द वीक इंडिविजुअल्स, और ये 3-4 कॉकरोच उस पर अटैक करके उसको जिंदा ही, उसका बॉडी के पार्ट्स अलग अलग तोड़ के कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कैनिबलिज्म। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स, व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स अनदर इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज कैनिबलिज्म। जैसा स्नेक्स में भी कैनिबलिज्म देखा जाता है, एक सांप दूसरे सांप को खा सकता है। ओके, काफी सारे एग्जांपल, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो।
In ancient times, when human population was more so divided into different types of tribes, हम जब नोमैडिक थे, ट्राइबल्स थे हम जब, तभी काफी सारे ट्राइब्स ऐसे थे जो एक्चुअली ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करते थे. तो ह्यूमंस कंज्यूमिंग फ्लैश ऑफ देयर ओन स्पीशीज, अगेन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ कैनिबलिज्म. इट्स डेंजरस, इट्स हॉरिबल, ओके, बट दैट इज द ट्रुथ. ओके, ठीक है. तो 4-5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हमने कॉकरोच के. इसके अलावा अगर हम कॉकरोच का सिस्टमैटिक पोजीशनिंग देखें, इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब ऐसा है, हमने सबसे पहला चैप्टर जब देखा था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने बात किया था कि कार्लस लिनियस was the scientist who proposed that all the organisms that we are studying under the realm of science, they should have one common universal name and one specific pattern to name these organisms. That pattern was called as binomial nomenclature. Standard 9th से सुन रहे हैं आप. किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम देते टाइम उसको 2 हिस्सों में नाम देना चाहिए, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम. लेकिन ये करने के लिए पहले उस ऑर्गेनिज्म का ठीक से क्लासिफिकेशन करना चाहिए. सिस्टमैटिक पोजीशनिंग मींस द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसा कॉकरोच के बारे में हमें बताया गया है कि कॉकरोच बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया. कॉमन सेंस है, एनिमल है. ओके, इट बिलोंग्स टू द फाइलम अर्थ्रोपोडा. आपने ये नाम सुना है क्या कभी? अभी तो मुंडी हिलाएंगे नहीं. आपने ये 9th स्टैंडर्ड में सुना था. 9th स्टैंडर्ड में आपको एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर था. एनिमल किंगडम में आपने जो अलग अलग फाइलम देखे थे, उसमें हमें ऐसा बताया गया है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट किंगडम, और सॉरी लार्जेस्ट फाइलम अमंग द कंप्लीट एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम आते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सबसे ज्यादा संख्या में डाइवर्सिटी जो है वो आर्थ्रोपोडा में मिलता है. आगे वो चैप्टर देखना है हमको, डोंट वरी. फाइलम आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच की क्योंकि बात चल रही है, कॉकरोच कम्स अंडर क्लास इंसेक्टा. अभी अगर एंट्रेंस लेवल पे हमें ये 2 चीजें तो पता ही रहनी चाहिए कि कॉकरोच का फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, क्लास कौन सा है, इंसेक्टा. लेकिन उसके अलावा हमें उसके पीछे का रीजनिंग भी पता रहना चाहिए. व्हाई इट इज अंडर आर्थ्रोपोडा, व्हाई इट इज अंडर क्लास इंसेक्टा. इट इज अंडर आर्थ्रोपोडा बिकॉज आर्थ्रो एंड पोडा, पोडा इज लेग्स. पोहा नहीं लिखा हुआ, तुमको अभी पोहा याद आ रहा होगा क्वारंटाइन में. ये पोडा है, पोडा इज लेग्स. आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड. These organisms, specifically we are talking about cockroaches, if you see their legs, आप जब ड्रॉ करते हैं आप ऐसा ड्रॉ कर देते. ओके, अभी ये पैर देखिए, ये कॉकरोच का पैर होगा, ये मस्कीटो का पैर होगा, घर के अंदर आने वाले हाउस फ्लाई का पैर होगा, ये कोई भी इंसेक्ट का पैर हो सकता है. लेकिन ये दिखता तो ऐसे, लेकिन एक्चुअली ये पैर जो है ये 5 अलग अलग पीसेस का बना हुआ है. ओके, पीसेस वर्ड अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मैं कहता हूं दे आर मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट सेगमेंट्स. मेन बॉडी को जब लेग अटैच रहता है, 1 2 3 4 5, ये कॉकरोच का या किसी भी इंसेक्ट का लेग ये ऐसा रहता है. तो ये जो लेग है, अभी क्योंकि हमने ड्रॉ किया है,
ये पहला पीस जो है उसे कहते हैं कॉक्सा। आपने आपके पास ड्रॉ करके रखना चाहिए। इससे पहले ये लेग का डायग्राम उन्होंने लेबलिंग के लिए पूछा है। फर्स्ट पार्ट इज कॉक्सा फॉलोड बाय ट्रोकैंटर फॉलोड बाय फीमर, देन ये छोटा वाला टीबिया, और ये मल्टीपल छोटे छोटे सब यूनिट्स वाला ये पूरा हिस्सा जो है उसे एक ही नाम दिया जाता है टार्सस। ये नाम और ये सीक्वेंस आपको बाय हार्ट रहना चाहिए। डायग्राम आप आपके पास रखिए। अगर टेक्स्ट बुक होगा आपके पास 11th एनसीईआरटी का, तो जहां पे कॉकरोच का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपने वहां भी इसको ड्रॉ करके रखना चाहिए और आपके टेक्स्ट बुक में भी इसको ड्रॉ करके रखना चाहिए। ओके, तो ड्रॉ करके ये, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी चीज अगर हमें किसी सीक्वेंस में लर्न करनी है तो ऑलवेज से इट लाउडली। कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। और इसमें ये टार्सस जो है वो फिर से 5 छोटे छोटे सब यूनिट्स का। एक तो जैसा मैंने बताया कि इंसेक्ट का लेग जो है वो खुद 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स का है, और इन 5 सेगमेंट्स में लास्ट सेगमेंट जो है टार्सस, टार्सस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स कॉल्ड एज टार्सोमियर्स। क्या बताया मैंने आपको? called as tarsomeres. And the best thing is that the leg of the cockroach, it ends with tarsus के end में it has this kind of क्या है वो? क्लॉ है वो। और क्लॉ की खासियत ऐसी है कि क्लॉ के अंदर अंदरूनी साइड, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, मैंने डिफरेंट कलर दिया है, ये है ये है एरोलियम। क्लॉस के बीच में ये एक स्टिकी पैड है जिसे एरोलियम कहते हैं। क्लॉस कैसा करते हैं? क्लॉज आपको ग्रिप देते हैं, और एरोलियम क्या करता है, कभी अगर किसी स्टीप एरिया पे अगर ये कॉकरोच ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, आपने देखा हुआ है कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, ये इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो खड़ी दीवार पे भी चढ़ जाते हैं और उतरते हुए दिखते हैं हमको। वो कभी फिसलते नहीं है, वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास क्लॉज भी है, और ये क्लॉ के अंदर एक स्टिकी पार्ट भी है, व्हाट इज कॉल्ड एज एरोलियम। बहुत सारे नाम है, आपको ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। समझ गए आप? ओके, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा बिकॉज आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग। दिखने को तो ये एक सिंगल लेग है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल यूनिट्स अटैच टू ईच अदर, जॉइंटेड लेग्स, इसलिए इसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आगे जाके ये आता है इंसेक्टा में। ये क्लास इंसेक्टा में इसलिए आता है क्योंकि ये इंसेक्ट्स के कैरेक्टर्स दिखाता है। इंसेक्ट के काफी सारे कैरेक्टर हम बता सकते हैं यहां पे, लेकिन मैं आपको एक ही कैरेक्टर यहां पे बताता हूं कि इसका बॉडी जो है इंसेक्ट का, किसी भी इंसेक्ट का, और कॉकरोच तो इंसेक्टा के अंडर आता है, तो किसी भी इंसेक्ट का या कॉकरोच का बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 sections और 3 parts। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts और 3 sections। कैसा? ये देखिए, एक रहेगा हेड, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कम अंडर इंसेक्टा, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनको आप इन जनरल इंसेक्ट कहते हैं,
उनका बॉडी का मेन ढांचा ऐसा ही रहेगा. देयर इज अ सिंगल हेड फॉलोड बाय thorax and last part is the abdomen. Body is always divided into three parts for insects: head, thorax, abdomen, head, thorax, abdomen, head, thorax, abdomen. Coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus. समझ रहे आप? ओके अभी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. यहां पे आप इस पार्ट को देखिए और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए. आप सोचिए कि ये कॉकरोच है, तो अपने आप धीरे धीरे आपको उसके फीचर्स इस पे दिखना शुरू हो जाएगा. ओगी एंड द कॉकरोचेस तो देखते ही होंगे आप, या पहले कभी तो भी देखते होंगे. मैं एक जमाने में बहुत देखता था. मेरा माय कजिन वाज देयर. ऑफ कोर्स ही वाज इन स्टैंडर्ड 4th and 5th दैट टाइम, एंड आई एम ऑलमोस्ट 20 years एल्डर टू हिम. पर वो और मैं दोपहर को खाना खाते टाइम दोनों एक साथ ओगी एंड द कॉकरोचेस देखते थे. लॉन्ग अगो, प्रोबेबली आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 and 2011. बट आई लाइक दैट कार्टून फॉर द रीजन कि उसमें कॉकरोच दिखाते थे, कहीं तो भी एनिमल किंगडम दिखाते थे. तो if you imagine properly, this can be a cockroach. If you can imagine properly, this can be a mosquito. थोड़े से फीचर्स चेंज हो गए, लेकिन बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा यही रहेगा. कॉकरोच का भी, मस्कीटो का भी, हाउस फ्लाई का भी ऐसा ही है, हनी बी का भी ऐसा ही है. मैं कॉमन इंसेक्ट्स बता रहा हूं आपको. ग्रास हॉपर आजकल देखिए, पिछले 2-4 दिनों से इसके बारे में बात किया जा रहा है. लोकस्ट, हिंदी में टिड्डी कहते हैं, टिड्डी. लोकस्ट का बहुत बड़ा झुंड, जिसमें लाखों की संख्या में ये टिड्डियां हैं, ये लोकस्ट है. ये कहीं तो भी नॉर्थ इंडिया में एंटर होकर अभी धीरे 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 साउथ इंडिया की तरफ. मैंने तो ये सुना कि 1-2 दिन पहले दे हैव एंटर्ड इनटू विदर्भ आल्सो थ्रू अमरावती रीजन. ओके, और ये बहुत बड़ी मात्रा. अभी आप टीवी देखने वाले लोग हैं, आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा. ये लोकस्ट यानी ग्रास हॉपर के ही रिलेटिव्स है. आप इसको ग्रास हॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कैसे? देखिए, बेसिक ढांचा वही है. अल्टीमेटली किस इंसेक्ट में इसको कन्वर्ट करना यू कैन डिसाइड. बट अल्टीमेटली इफ इट इज एन इंसेक्ट, द बॉडी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. समझ रहे हैं आप? ओके. एंड फाइनली वी हैव द genus name and we have the species name. The cockroach that we will be studying, उसका जीनस नेम जो है वो है पेरीप्लैनेटा, और उसका जो स्पीशीज नेम है वो है अमेरिकाना. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ओके. तो कॉकरोच, किसी ने अगर पूछा कि अरे कॉकरोच का साइंटिफिक नेम बताओ या कॉकरोच का साइंटिफिक नेम लिख कर दिखाओ, तो वी विल राइट इट एज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. साइंटिफिक नेम है तो उसमें एक जेनेरिक नेम रहेगा, एक स्पीशीज नाम रहेगा. जेनेरिक नेम शुड ऑलवेज हैव फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब शॉर्ट है. स्पीशीज नेम में तो एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर. अगर ये प्रिंटेड होता तो हम इटैलिक्स में प्रिंट करते, लेकिन क्योंकि ये हैंड रिटन है, वी आर अंडरलाइनिंग इट. सिंगल अंडरलाइन, सेपरेट अंडरलाइन. ये हमने बात किया है ऑलरेडी. समझ गए आप? ओके. सो दिस इज ऑफ कोर्स ब्लैटा, BLATTA. ब्लैटा नाम का भी एक स्पीशीज कॉकरोच का. कॉकरोच की कई सारी स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन वी डोंट वांट टू गो इनटू इट. हमारा मेन काम क्या है? हमें बेसिकली पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इसका स्टडी करना है. ओके. अभी ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, थोड़ा कॉकरोच ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अभी.
डोंट वरी, आसान है वो, सिर्फ हमें थोड़ा सा जगह लगेगा, देख लेंगे हाउ टू डू इट। एनीवे, तो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू ड्रॉ इट विथ मी। मैं थोड़ा थोड़ा, मैं एकदम पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, ओके मैं पार्ट्स में ड्रॉ करता हूं, तो आपको भी आसान हो जाएगा पार्ट्स में ड्रॉ करना। और पेंसिल से ड्रॉ कीजिए प्लीज, ओके अभी नहीं होगा तो 10 सेकेंड के लिए ये वीडियो को स्टॉप कीजिए, जल्दी से भागकर कहीं से तो भी पेंसिल लेके आइए। पेंसिल इसलिए लेके आइए क्योंकि इसमें इस डायग्राम में कैसा है, बहुत सारी चीजें हम इनिशियली ड्रॉ करके बाद में उसे हटा देते हैं, उसमें नए ऑर्गन्स फिट करने के लिए। इसलिए इट्स बेटर कि आपको हटाना अगर है तो आपने पेंसिल यूज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनिशियली आप जब ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर और ढांचा ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पेंसिल को थोड़ा हल्का रखिए एकदम। सिंस द वर्ड गो, डोंट स्टार्ट ड्रॉइंग विथ अ वेरी डार्क लाइंस, लाइंस थोड़े से लाइट रखिए। पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया कि देन यू डार्कन इट आउट। समझ रहे हैं आप? ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट।